जी Now tell me, what is critical, what is theory? Once we know what is theory, then we'll move towards literary criticism, then we'll move toward literary theory, and definitely then we'll know what is critical theory. There is a difference between literary criticism and literary theory. First of all, make sure literary theory and literary criticism, these are two different sir. things. Sir, in literary theory, we see the body of ideas and methods which the writer use in particular text and or any part of literature. Uh, how can literary theory help us in literary criticism? Sir, ये नहीं पता. Okay, definitely these are a question, and definitely if somebody asks question and you confused over there, literary theory and literary criticism, these are two different things. First of all, make sure. Then we'll be we'll discuss. There is a difference between work and text. Before Ronald Barthes, people who criticize work, they were criticizing work, and whenever they studying work, they are using with respect to close-ended view. But as he converted from work to text, then people started isolating the work of some writers, and they started studying with open-ended way. So there is a difference between close-ended and open-ended. Close-ended mean you can't go outside the box. You have to see things with respect to the work of the writer. But once you take the work into the text, for example, I am the writer, and if we are going to criticize, somebody wants to criticize my work, he is taking it as a work, then he or she will see with respect to close ended. He or she will not go outside the box. She or he is going to see according to my life, according to my background, according to my culture, according to my literary age, according to the age in which I wrote same work. But as Ronald Barthes come, he was an anthropologist, he was a critic, he was a theorist. He takes the same work and he converted work into the text. He said that no, there is a death of the writer. He wrote book Death of the Writers. As writer writes book, no, his work has been completed. No, he has done his job. No, he's not related to this work. This work is no more belong to the writer. No, it is just a separate text. Take this separate text and evaluate with respect to meter, with respect to paradox, with respect to style, with respect to devices, with respect to his way of writings. So we are not going into the detail of the writer's background to evaluate text. Rather, we are going to evaluate with respect to the style, because text speaks itself. Text speak itself. Text has meaning. Text has message. Text has narrative. Text has at contextuals, pragmatic, and ideological, or you can see at various level: grammatical level, narrational level, ideological level, pragmatic level, contextual level, cultural level. So you can see text with the various levels. You don't need to go to the background of the writer. Writer age, writer biography, writer effects, writer impacts. So these things, Ronald Barthes, he separated. He followed, in fact, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. He was also a critic. Who wrote Death of the God. And after that, he writes book, Death of the Author. I hope you got the message. पहले लोग क्या करते थे कि वो मैसेज को देखने के लिए, किसी वर्क को एवेल्युएट करने के लिए वो देखते थे कि किस राइटर ने लिखी है, एज किसका है, इम्पैक्ट कौन से है, इन्फ्लुएंसेस कौन से हैं, उसकी बायोग्राफी क्या है, उसके इन्फ्लुएंसेस क्या है, ये मिडिवल एज का है, ये विक्टोरियन एज का है, ये एलिजाबेथन एज का राइटर है, ये रेनेसेंस एज का राइटर है, ये मॉडर्न एज का राइटर है, ये पोस्ट मॉडर्न एज का राइटर है. लेकिन जब इस तरह के राइटर्स आए तो उन राइटर ने कहा, यार वर्क को छोड़ो, वी शुड वर्क ऑन टेक्स्ट. व्हेन राइटर राइट्स हिज वर्क, दिस वर्क इज नो मोर
no more property of the writer. Writer has written, he has done his job. Now take his work and separate it and evaluate with respect to his work, not his life. I hope you got the point. Now we have to discuss about literary theories and literary criticism. And this word is really confusing, student. You can ask from MPhil student, you can ask from BS English student, ask the difference. They will be baffled and confused. They are unable to tell you answer. What is the difference between literary theory and literary criticism? But there is a difference, and difference exists between two different approaches to evaluate something. Literary theories mean it is already established fact, already established principles, and these are the principal order, principal rule, methods, and they are already written by somebody and theoretically discussed by somebody, and already these are rule, principle, and already they are written in a theoretical form, in the form. They are not fact now, but they are written in the theoretical form. They are already existing, and they are principle, they are rules, they are already written. They are in the form of structuralist theory. It can be form of a post-structuralist theory. It can be form of feminist theory. It can be form of cultural theory. It can be form of post-colonial theory. It can be form of colonial theory. So these are all theories. When you are going to evaluate piece of text, you will apply already established principles, and according to these established theories, you are going to criticize. You can say literary criticism is a practice, while literary theories are the rules, method, principles, abstracts, and they are already existing. But on the basis of these rule, principle, method, when you are applying it on any literary genre, and you are going to criticize by applying all these method, principle, it will be practice. It is a verb and it is a noun. In simple word, I will say it is a noun, but on the other side, it's a verb. एक साइड पे हमारे पास रूल, नॉर्म्स, मेथड्स हैं जिनकी बेस पे आपने किसी योनरा को, किसी लिटरेरी योनरा को प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और उसके बाद उससे कोई कंक्लूजन निकालना है. तो जब आप पहले से बने प्रिंसिपल, मेथड और लिटरेरी थ्योरीज का नॉलेज आप किसी लिटरेरी जॉनरा के ऊपर अप्लाई करके उसको अप्लाई करते हो, तो वो आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म बन जाता है. यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक प्रैक्टिस है, और जबकि ये क्या है, प्रिंसिपल, रूल, मेथड है, लिटरेरी थ्योरीज. आप मुझे बताएंगे कि आप दोनों को समझ आई इस बात की? आप अपने लफ्जों में मुझे बताएं. हफ्जा और फातिमा दोनों, both, if we resonate, I think it will be better if we resonate with each other. So you should tell me in your own words. Yes, sir, I can define in easy word. Very Literary theory denotes abstract and ideas, method, a rules. set of rules. Yeah, very good. And while literary criticism denotes an action and a practical study about a literary text. Very good. Now you got the idea. अब देखिए, ये Yes, sir. चीज अगर आप 20 आर्टिकल भी पढ़ लें, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आपके लिए वो बेकार है. पूरी बुक पढ़ लें, समझ नहीं आई तो बेकार है. अब आपको पता चल गया, अब हमने ये सारी थ्योरीज पढ़नी है. हमने कल्चरल थ्योरी को भी स्टडी करना है, हमने स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी को भी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को भी, कल्चर कॉलोनियल को भी, पोस्ट कॉलोनियल को भी, और इन सारी थ्योरीज को स्टडी करेंगे. और जब हम इन थ्योरीज को समझेंगे तो फिर हमारे लिए आसान होगा किसी पीस ऑफ लिटरेरी जॉनरा को क्रिटिसाइज करना, उसको क्रिटिकली एवेल्युएट करना. अब इसके साथ ही क्रिटिकल थ्योरीज का भी डिस्कस होगा. क्रिटिकल थ्योरी बेस्ड, it is the deep critique of a society, people, or any topics in your society. जब उसे आप डीपली क्रिटिक उसकी देते हैं, वो उसकी क्रिटिकल स्टडी बन जाती है या क्रिटिकल थ्योरी बन जाती है. हमने अभी तक डिस्कस किया है क्रिटिकल थ्योरी को, और उसके बाद क्रिटिकल थ्योरी को डिस्कस किया, और क्रिटिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया है. इसके बाद
मजीद हम देखेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फॉर्मलिज्म क्या है। इन सारी चीज़ों को मैं आज आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. You will easily explain all these things. So let's discuss one by one what is literary criticism, literary theories, everything. So in today's topic, you people are going to learn what is literary theory, difference between literary theories and literary criticism, types of literary theories, and old criticism and new criticism. So let's see what is old criticism and new criticism. So what is difference between literary criticism and new criticism? Anybody, if anybody wants to define what is difference between old criticism and new criticism. If you don't know, then I will explain, don't worry. So what is difference between new criticism and literary criticism? Okay, define if you have any idea. So I have no idea. Okay, let me explain. Whenever you want to define, whenever you want to evaluate piece of literature, piece of literary genre with respect to old criticism, you will see thing with respect to the background knowledge of the writer, his life, his age, and his influences, his background, and how society impacted him. So all things you are going to study, and then you are going to evaluate piece of poems, piece of novel, piece of drama, or any literary genre. So this study, especially old criticism, it is known from Plato to Victorian age. For example, we are going to evaluate one of the writer known as Thomas Hardy. We are going to evaluate Thomas Hardy. So whenever we are going to evaluate novels of Thomas Hardy, definitely first of all we'll see that he belongs to Victorian age. And this writer, he is also known as a transitional writer because he is also coming in Victorian age as well as in Romantic age. So he is covering both ages, Romantic age, Victorian age and even modern age. So he is, he's getting two ages. He's coming in Victorian and Romantic modern age as well. So whenever writer is, his life is coming in two ages, like he's touching Romantic age, modern age, as well as Victorian age, you can call him as a transitional writer. तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस क्या थे. वो इन्फ्लुएंस था, वो क्या था, एक तो वो अपने आप को कहता था कि मैं मिलोरिस्ट हूं, और लोग उसको क्या कहते थे कि वो एक क्या था, कि वो एक फेटलिस्ट था, फेट पे बिलीव करने वाला था. फेटलिस्ट उसे कहा जाता था. वो कहता था कि इंसान जो है वो हमेशा जो डेस्टिनी है वो उसके अगेंस्ट चलती है, इंसान जो भी कर लें, किस्मत जो है, फेट उसके अगेंस्ट चलती है. यानी फेट की जो फोर्सेस हैं वो हमेशा इंसान की अपोजिट डायरेक्शन पे चलती है, इंसान जितनी भी कोशिश कर ले. वी आर पपेट इन द हैंड ऑफ नेचर, उसके अकॉर्डिंग. तो डेस्टिनी, फेट हमेशा इंसान के साथ खेलती रहती है, और उसके जितने भी आप नावल उठाएंगे उसमें फेट जो है वो डिस्ट्रॉय करती है. हमेशा नेचर जो है वो बड़ी जालम है, और वो क्या, नेचर अपोजिट काम कर रही है, अपोजिट फोर्सेस काम करती है. ठीक है, हम उसकी लाइफ को देखेंगे, इन्फ्लुएंसेस देखेंगे, और उसकी अपनी लाइफ, उसकी मदर की लाइफ भी ऐसी गुजरी थी, उसने सफ़र किया था. वो फीमेल की सफरिंग दिखाता है, सेक्सुअलिटी को दिखाता है. ठीक है, बोल्ड सीन दिखाता है, सेक्सुअल सीन दिखाएगा, नेचर को दिखाएगा, आसमान से शुरू होगा और ज़मीन तक आ जाएगा, और बड़ी अच्छी तरह उसका ओरिएंटेशन बनाएगा, इंट्रोडक्शन बनाएगा, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, कंक्लूजन करेगा. तो हम उसकी लाइफ को देखेंगे, उसके इन्फ्लुएंसेस को देखेंगे, इम्पैक्ट्स को देखेंगे, उसकी बायोग्राफी को देखेंगे, किस एज का, विक्टोरियन एज का राइटर था, तो कैसा राइटर था, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस थे उसके ऊपर, सारा कुछ देखेंगे. ठीक है, तो फिर हम एक नावल को उठाएंगे और उसके बाद उसको वैल्यूएट करेंगे, उसकी लाइफ को साथ अप्लाई करके, उसकी बायोग्राफी को, सोशो इकोनॉमिक्स जो बैकग्राउंड था और उसके इन्फ्लुएंसेस को, उसके बाद उसको देखेंगे. लेकिन अगर इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों को हम निकाल देते हैं, यानी ना तो हमें उसकी लाइफ की ज़रूरत है,
ना तो हमें उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ना हम उसके ऊपर इम्पैक्ट्स कौन कौन थे, उसकी एज क्या थी, विक्टोरियन था या वो एलिजाबेथन था या वो क्लासिकल था, न्यू क्लासिकल था, रोमांटिक था, मॉडर्न था, पोस्ट मॉडर्न था, मिल्टन एज का था, जॉनसन एज का था, पॉप की एज का था। वी डोंट नीड। जब हम न्यू क्रिटिसिज्म में आएंगे तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ टेक्स्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं? इसमें क्या देखा जाता है? इसमें वर्क को देखा जाता था। किसको देखा जाता था इसमें? वर्क को। और इसमें किसको देखा जाता है? टेक्स्ट को। उसकी टेक्स्ट को सेपरेट कर लेंगे और उसकी टेक्स्ट के अंदर अगर पीस ऑफ पोएम है तो हम उसके अंदर देखेंगे कि इसकी फॉर्म क्या है, इसकी शक्ल क्या है। ठीक है, उसमें डिवाइसेस क्या यूज हुई हैं, वो कौन सी डिवाइसेस यूज करता है, नैरेटिव कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नैरेटिव है, कौन सा नैरेटिव यूज करता है। ठीक है, हम देखेंगे मेट्रिकल लैंग्वेज क्या है, मीटर्स क्या है, इसके पैराडॉक्स कहाँ कहाँ यूज किए, पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यूज तो नहीं करता राइटर। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस और भी जो उसके अंदर हैं वो सारी हम देखेंगे। इन सब को स्कैन करेंगे और फिर उसको अवेल्यूएट करेंगे, उसकी टेक्स्ट को। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं किसी चीज को अवेल्यूएट, तो फिर आप कौन से नॉलेज को, कौन से क्रिटिसिज्म को अप्लाई कर रहे हैं? न्यू क्रिटिसिज्म को। जबकि ओल्ड क्रिटिसिज्म प्लेटो से विक्टोरियन एज तक का किस तरह का आपको मिलेगा कि वो सारा क्रिटिसिज्म राइटर की बायोग्राफी और उसकी इम्पैक्ट्स और सोशो इकोनॉमिक्स इम्पैक्टेड और ये सारे इम्पैक्ट्स जो हैं इनको देख के किसी लिटरेरी जोनरा को अवेल्यूएट करते थे। यहां तक क्लियर है? कोई आपसे ओल्ड Yes, sir, I got it. और न्यू क्रिटिसिज्म पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ओल्ड क्रिटिसिज्म प्लेटो से विक्टोरियन एज तक, अरिस्टोटल, प्लेटो, सिडनी और जॉनसन और जितने भी थे, ये सारे किस पे डिस्कस करते थे? हाँ, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म का कंसेप्ट है, ये दो कंसेप्ट से आया है। अगर आप में से किसी ने टी.एस. इलियट को पढ़ा हो, और आपने जरूर पढ़ा होगा टी.एस. इलियट को, टी.एस. इलियट थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी पे बात करता है। किस पे बात करता है? डीपर्सनलाइजेशन पे। These are criticism. टी.एस. इलियट ने बात की थी डीपर्सनलाइजेशन पे। उसने कहा था कि एक राइटर को ऐसे ही होना चाहिए गॉड की तरह। गॉड हर जगह मौजूद है लेकिन कहीं नजर नहीं आता। गॉड हर जगह मौजूद है लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है उसको आप फिजिकली उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो हर चीज में मौजूद है। तो उसने कहा कि गॉड, राइटर शुड बिहेव लाइक अ कैटलिस्ट। he should not get impacts on his personality. He should not express his personality, rather escape from personality. उसने जितने भी रोमांटिक पोएट्स थे उनको स्टडी किया। उसने टी.एस. इलियट को स्टडी, उसने टी.एस. इलियट ने स्टडी किया वर्ड्सवर्थ को, कॉलरिज को, और उसने स्टडी किया बैरन को, लॉर्ड बैरन को, उसने स्टडी किया जॉन कीट्स को, पीबी शैली को। ये सारे पोएट्स को स्टडी करके उसने निचोड़ के रख दिया। लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिक था। उसने कहा जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं वो जस्ट अपनी फीलिंग लिखते हैं, और उससे पहले उसने क्लासिकल राइटर को पकड़ा, उसको भी निचोड़ के रख दिया। उसने कहा जितने भी क्लासिकल पोएट्स हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी थॉट बताते हैं, सिर्फ ये फीलिंग बताते हैं, वो थॉट बताते हैं। यानी इन दोनों में फर्क ये है कि ये कहीं भी दोनों चीजों को मिला के नहीं लिखते। वो ऑब्जेक्टिविटी पे काम करते हैं और प्योर ऑब्जेक्टिव थॉट्स जो हैं लिखते हैं। जबकि ये जो है सिर्फ फीलिंग, जो फील कर रहा है राइटर, जैसे जैसे फील करता जाता है वैसे वैसे वर्ड्सवर्थ लिखता जाता है, आगे आगे चलता जाता है, और ऐसे जैसे वो आगे दौड़ रहा हो और नेचर के पीछे पीछे दौड़ रहा हो तो वैसी वैसी फीलिंग्स जैसे आती जाती हैं वैसे लिखता जाता है। उसने कहा रोमांटिक पोएट्स फीलिंग्स लिखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग देते हैं, और वो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स देते हैं। जहां पे दोनों चीजें मिल जाती हैं वहां पे बनता है यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स एंड सेंसिबिलिटी। जहां पे मिल जाती है वहां पे जॉन डन बनता है। उसने कहा जॉन डन बड़ा अच्छा पोएट है। वो कैसे पोएट्री करता है? वो अपनी थॉट्स और फीलिंग दोनों को मिला के पोएट्री करता है।
यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स एंड सेंसिबिलिटी के जरिए पोएट्री करता है। तो ये जो डीपर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये न्यू क्रिटिक्स जितने भी थे इन्होंने लिया था टीएस इलियट से, और मैथ्यू आर्नल्ड की थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का जो उसका कंसेप्ट था उसका, यानी ये दोनों किससे इन्फ्लुएंस थे? बेसिकली मैथ्यू आर्नल्ड से। ये लिख लें, मैथ्यू आर्नल्ड और टीएस इलियट, इन दोनों के कंसेप्ट को आगे उन्होंने बढ़ाया था और उन्होंने कहा कि हमें जरूरत क्या है खपने की, कि हम राइटर की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे जाएं, फिर पीस ऑफ टेक्स्ट को हम अवेल्यूएट करें। तो इसके लिए आईए रिचर्ड जो है उसका नाम आप जरूर पढ़ेंगे, जब भी आप न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो आप आईए रिचर्ड को पढ़ेंगे। आईए रिचर्ड ने क्या किया, दो ग्रुप लिए, जैसे आप मेरे दो स्टूडेंट हैं, आप में 10-10 स्टूडेंट हैं आपके ग्रुप में, तो 10 स्टूडेंट हफ्जा के साथ हैं, 10 जो हैं वो फातिमा के साथ हैं। आप दोनों को मैं दो ग्रुप में बांट देता हूं। तो आइए रिचर्ड ने वेरी फर्स्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा चलो देखते हैं। एक ग्रुप 1 बनाया उसने और एक उसने ग्रुप 2 बनाया, ठीक है। अब एक ग्रुप ये है और एक ये है। इस ग्रुप में भी कुछ स्टूडेंट है, इस ग्रुप में भी कुछ स्टूडेंट है। वो कहता है कि पहले ग्रुप को बताता नहीं है, एक पोएम दे देता है, उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और राइटर के बारे में नहीं बताता। इसको पोएम एक दे देता है और इनको सब कुछ बता देता है, इसका बैकग्राउंड क्या है राइटर का, उसके इम्पैक्ट्स क्या थे, एज क्या थी, लिटरेरी जॉनरा कौन सा था, कौन सा नैरेटिव यूज, एवरीथिंग ही टेल्स, एंड देन ही से दैट एवैल्यूएट पीस ऑफ पोएम। अब जब उन दोनों के रिजल्ट आते हैं, उन दोनों रिजल्ट को जब एवेल्यूएट करता है तो वो दोनों रिजल्ट बड़े डिफरेंट आते हैं। जिनको वो बता देता है वो कुछ और लिखते हैं, और जिनको वो नहीं बताता वो कुछ और तरह से एवेल्यूएट करते हैं। तो उसने कहा कि असल बात तो ये है कि पोएम को उसके वर्क के लिहाज से राइटर को छोड़ के एवेल्यूएट करना ये ज्यादा अच्छा है। अगर हम उसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं, हम पहले ही बच्चे को बता देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, ये जॉन मिल्टन ने लिखी है, और जॉन मिल्टन की ये लाइफ है, वो बड़ा रिलीजियस पोएट था, बड़ी ग्रैंड लैंग्वेज कर यूज करता था, बड़ी फिगर ऑफ स्पीच उसके बड़े, और वो आईएम्बिक पेंटामीटर में स्टैंजास बनाता था, आईएम ब्लैंक वर्स में लिखता था और आईएम्बिक पेंटामीटर में लिखता। ये पोएट्री उसकी है। उसकी 4-5 मैं आपको उसके ग्रैंड आइडियाज भी बता देता हूं। तो आपको जो भी अब पोएमा दूंगा तो आपके माइंड में वही आएंगी कि वो रिलीजियस था, वो मजहब से बड़ा क्लोज था, वो प्योरिटन था, प्योरिटन से इन्फ्लुएंस था, प्योरिटन का लीडर था, उसके लिए पम्फलेट लिखता था, बुक्स लिखता था। पैराडाइज लॉस्ट भी उसने ऐसे लिखी थी। तो जब आपके पहले ही सब्जेक्टिविटी आपके माइंड में आ गई तो आप कभी भी पोएट्री को अच्छी तरह वैल्यूएट नहीं कर पाओगे। आप उसको उसी लिहाज से देखोगे जैसा वो पोएट की लाइफ थी। तो उन्होंने कहा कि नए तरीके से पोएम को एवेल्यूएट करना चाहिए। तो इसने एक वर्क लिखा था, उस वर्क का नाम लिख लें, आईए रिचर्ड ने, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में। इसने न्यू क्रिटिसिज्म का नाम इसने कॉइन आउट नहीं किया था। जिसने इसका नाम कॉइन आउट किया था उसका नाम लिख लें, उसका नाम था जॉन क्रो। उसका नाम था जॉन क्रो रैनसम। उसने कॉइन आउट किया था जॉन, ये नाम भी लिख लें, जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम जो है, इसने न्यू क्रिटिसिज्म का नाम जो है, पहली दफा इसने न्यू क्रिटिसिज्म जो है इस वर्ड को कॉइन आउट किया। लेकिन इसने आईए रिचर्ड ने जो बुक लिखी थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसमें उसने 1929 में उसने एक बुक लिखी थी, उसको नोट कर लें, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उसने फिर आगे फॉर्म बात की कि किस तरह से हम किसी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसके बाद उसने एक और किताब और भी बुक इसने लिखी है, ये सारे नोट कर लें। एक तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में लिखी, मीनिंग्स ऑफ मीनिंग्स, मीनिंग्स ऑफ मीनिंग, ये भी इसका वर्क है, मीनिंग्स ऑफ मीनिंग। उसके बाद दूसरा इसका वर्क लिख लें, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी इसका वर्क है।
प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी इसका वर्क है। आगे लिख लें फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक, फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक, RHETORICS, रेट्रिक। रेट्रिक का मतलब होता है persuasive language. Whenever I talk to somebody, whenever I talk to my students, friend, and in any society, I'm talking to people. I know rhetoric, I know logic, I know reason, how to give reason, how to give logic, how to use persuasive language. They will be influenced, and inspired. So if you know rhetoric, then people will be inspired. People will follow you. People will be guided. They will be guided well. They will be inspired well. They will like your language. They will like your diction and selection of words because you know rhetoric. तो ये rhetoric जो है, ये भी उसने वर्क लिखा है। यानी एक मीनिंग्स ऑफ मीनिंग लिख लें, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आई रिचर्ड के वर्क हैं, IA रिचर्ड इसके वर्क हैं। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक, वो कहता है कि किसी भी टेक्स्ट को यूज करने के लिए, यानी जो लैंग्वेज होती है वो साइंटिफिक होती है और इमोटिव होती है। साइंटिफिक में वो बात करता है कि ऐसी लैंग्वेज जो हम रोजमर्रा जो बातें करते हैं किसी से, जब हम कोई वर्क किसी से बातचीत करते हैं, वो साइंटिफिक लैंग्वेज है। और इमोटिव लैंग्वेज जो ड्रामा, पोएट्री, नावल और प्रोज और लिटरेरी जॉनरास में, और मेट्रिकल लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं लिटरेरी, वो इमोटिव होती है। उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म का मैंने आपको बताया कि ये दोनों इन्फ्लुएंस थे किससे, एक मैथ्यू आर्नल्ड की ऑब्जेक्टिविटी से और दूसरा टीएस इलियट की डीपर्सनलाइजेशन से। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर है। अब यहाँ तक जो मैंने चीजें बताई हैं, कोई अपने वर्ड में बताना चाहे तो वो बताए। बी कॉन्फिडेंट, I want to create reader, I want to create a leader, not follower. So be leader and express yourself. अभी मैंने क्या बताया, मैंने ओल्ड क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, और न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में मैंने कुछ बताया। If you know something, you express yourself. Hafsa, you please, you come up. Yes, sir. आपने ये कहना कि जो ओल्ड क्रिटिसिज्म है, फिर उर्दू में बताऊंगी। Old criticism began from Plato to Victorian age, and in this criticism, we evaluate the writer's biography, writer's life, writer's parents' life, and writer's age, and we see that from which age writer belongs, and in new criticism, we see work, we evaluate the text. If we want to see, if we want to evaluate the poem, we see, we check that which devices the writer has used, and we see that where he has used paradox, and we also check text. We also point out the different literary devices. We scan these things, and then we evaluate the text. And then you have taught us that concept. This concept is derived from two devices, from two writers, T.S. Eliot and Matthew Arnold. And T.S. Eliot says that the writer should behave like a characterless. He says that the romantic writers write what they have seen, or what they have what they have felt about nature. And classical writers expressed their thoughts. And then he says that John Donne is a good poet. Yes. Then he says that John Donne is a good poet because when expression of thought and feelings, वो दोनों को मिला देते हैं, and जब मिला देते हैं तो फिर वो जॉन डन बन जाता है. And
फिर IR Richard make the two groups in सर वो फिर दो ग्रुप बना देता है और एक ग्रुप को राइटर के बारे में सारा कुछ बता देता है कि ये इस एज से बिलोंग करता है, उसके ये सारे वर्क्स हैं, इसके बारे में बता देता है, और दूसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं बताता। वो दोनों को कहता है कि वो एवेल्युएट करें, और फिर जो ज्यादा बेहतर होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता, वो ज्यादा बेहतर करते हैं। अगर हम किसी भी राइटर को एवेल्युएट करना चाहें तो फिर अगर हम बता दिया जाए कि ये इस एज का है, इसने इस चीज के बारे में लिखा है, ये तो सब्जेक्टिविटी आ जाती इंटेलिजेंस था, तो फिर हम हर पोएम को एवेल्युएट करते हुए यही देखेंगे कि हाँ इसमें ये चीज है, तो ये पोएम में भी हमें वही बस सब कुछ नजर आएगा जो हमें उसके बारे में पता होगा। तो फिर आपने उसकी बुक्स के बारे में बताया कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, मीनिंग्स ऑफ मीनिंग्स, एंड 2 नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एंड देन फिलोसफी ऑफ रेटरिक। है। वेरी। फातिमा, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? Yes, sir, I want to say something that there is a great difference between MA English syllabus, part 1 and part 2. In part 1, we have to only know about the biography about writer and their work and especially their ages. And in part 2, we have to deal with their only work, Yeah. especially Philip Larkin as my best and favorite poet in part 2. Yes. Very good. And and Mostly writer we have, they are modern writers, and modern writers, yes, sir. modern criticism. Definitely, we have to see with respect to their work, with respect to text, not work. Work is a basically closed ended, where you can't contribute anything. You have to work in a specific box. You can't go outside the box. So when something is open ended mean you can extend as much as you can. अगर मैं आपसे पूछता हूँ हफ्सा से या फातिमा से, मैं हाउ आर यू, मैं आपसे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल डू यू टेक टी। अब आपसे मैं डू यू टेक टी, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? ये क्लोज्ड एंडेड है, यस नो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाई डू यू टेक टी, तो फिर आपको मुझे क्लोज्ड एंड ओपन एंडेड में एक आंसर देना पड़ेगा आपको मुझे। सर मैं चाय इसलिए पीती हूँ टू बी एक्टिव, टू स्मार्ट एंड टू लुक बेटर, टू लुक वेल, एंड इट इज जस्ट इट मेक अ मैन एक्टिव, एंड once I take tea, I energize myself, I look more active, and I can do work 2 hour 3 hour. I can't tired, I can smart enough, I can motivated enough. सो इस तरह आप मुझे लॉन्ग आंसर दे सकती हैं। तो एक है क्लोज्ड एंडेड, पहले क्लोज्ड एंडेड किया हुआ था वर्क को, लेकिन ये रोनाल्ड बार्थ ने जब डेथ ऑफ द ऑथर लिखी तो उसने कहा भाई छोड़ें इसको लेकर आए वर्क की तरफ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपसे कोई बंदा इस बारे में बात करे क्रिटिसिज्म में, नोल्ड क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म को भी अभी हम डिस्कस करते हैं, लिटरेरी थ्योरी और थ्योरी, इनमें फर्क पूछे तो आप बड़ी अच्छी तरह बता सकेंगे। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बताए। ये इतना जो भी मैंने पढ़ाया ये क्लियर है? Yes, sir, I got it. वेरी गुड। हफ्सा आपको? यस सर, क्लियर है। लें जी, नो लेट्स डिस्कस अबाउट क्रिटिकल थ्योरी। पहले तो हमने बात की थी अब हमने बात करी थी लिटरेरी थ्योरी की और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, बट देयर इज अ क्रिटिकल थ्योरी एज वेल। How critical theory is formed? Whenever you want to write a critical theory, whenever you want to write, for example, I want to give critical theory about school, I want to write something related to the society, then I have to deeply dig into the society and see its merit and demerits, and I have to give a deep critique of my society. So when you give in-depth critique of the society and you observe socio-political and other structure of your society and you give in-depth critique of any topic, it is known as critical theory. And now we have literary theory. I have already told you literary mean it's something related to literature. Definitely it's something related to some written work.
So literary theory mean something already written and established rule, principle, abstract method rules. These are already discussed and they are written. You take data, you take information from writer, they already discussed, and then you literally criticize and you practice it. It will be known as literary criticism. Literary theories already established principle, rule, methods already discussed by the peoples, and they have their names. It can be Marxist theory, it can be feminist theory, it can be structuralist theory, it can be post-structuralist theory, it can be colonial theory, it can be post-colonial theory. They are already written, established, and they are well known. You take information from them and then you apply on certain literary text book, and you evaluate with the help of already established rules, principles, abstract and set of rules, and you apply and you practice it, you bring into practice, and this will be known as literary criticism.